guys, this is Shubham Srivastava and you are watching my first ever YouTube video. So as you have seen in the thumbnail, this video is all about zero coupon bond. The reason behind choosing this topic is that I found on various platforms that most of the people are confused or even don't know about what are zero coupon bond. So here is a video for them. Don't skip the video, watch it till the end as it will make you understand better. So without any wasting time, let's start the topic. So before understanding what are zero coupon bond, let us try to understand what are bonds. A bond is a doorway through which a government or a corporate body try to raise their capital. मतलब कि एक डोरवे है जिससे कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉडी अपना कैपिटल रेज करते हैं. सो व्हेन दीज बॉन्ड्स आर इशूड, हु परचेज देम? दीज आर परचेज बाय द इन्वेस्टर्स. किससे? फ्रॉम गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉडी जो कैपिटल रेज करना चाहते थे. सो व्हाट डू द इन्वेस्टर्स गेन फ्रॉम दिस? The investors earn the interest rate, which is also known as the coupon rate, which is paid annually or semi-annually throughout the life of the bond. मतलब कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है इससे? इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट का फ़ायदा होता है, विच इज़ पेड एनुअली और सेमी एनुअली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. सो व्हेन दीज बॉन्ड्स आर मैच्योर्ड, सो इन्वेस्टर्स को इसमें क्या फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर्स आर अगेन रीपेड द अमाउंट विच इज़ इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. मतलब कि इसमें इन्वेस्टर्स को क्या अमाउंट मिलती है? अमाउंट विच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. But in every type of bond, interest rate or coupon rate is not paid, and zero coupon bond is such type of bond in which interest rate is not paid. So zero coupon bond किस पे ट्रेड होता है? जीरो कूपन बॉन्ड इज ट्रेडेड एट अ डीप डिस्काउंट रेट. अब ये डीप डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है? डीप डिस्काउंट रेट मीन्स zero coupon bond is purchased at a price which is drastically reduced to its face value. मतलब कि ये फेस वैल्यू से भी कम प्राइस पे मिलता है. सो जीरो कूपन बॉन्ड होल्डर का फायदा क्या हुआ इसमें? दे आर पेड द अमाउंट विच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस. जो भी इसका डिफरेंस होगा वही उनका गेन होएगा. नाउ वी विल लर्न टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जिसका कि एक फॉर्मूला है प्राइस इक्वल्स टू m डिवाइड बाय 1 plus r whole power n, where m equals to maturity value or face value, r equals to required rate of return and n equals to number of years till maturity. Now we will try to understand this formula by an example. आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल होगा जिसमें r equals to 5% है, 20,000 है फेस वैल्यू and n equals to 3 years. So putting all these values in the formula, price equals to m which is equals to 20,000 divided by 1 plus r equals to 0.05 and n equals to 3, जिसका आंसर आएगा 17277. सो इन्वेस्टर्स को कितने पे सेल होएगा? 86% ऑफ द फेस वैल्यू. सो इसमें फ़ायदा क्या हुआ बॉन्ड होल्डर का? बॉन्ड होल्डर को मिलेगा ये फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस. फेस वैल्यू इक्वल्स टू 20,000 माइनस परचेज प्राइस विच इज इक्वल्स टू 17277. इसका आंसर क्या आएगा? 2723, जो कि ये बॉन्ड होल्डर का गेन होएगा. सो इस पूरी थ्योरी का क्रक्स क्या निकला? ग्रेटर द लेंथ ऑफ टाइम फॉर मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, लेसर द इन्वेस्टर्स पेड्स फॉर इट. नाउ वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन द जीरो कूपन बॉन्ड एंड रेगुलर बॉन्ड. So the first difference between the regular bond and zero coupon bond is on the basis of coupon rate. In zero coupon bond, no coupon interest rate is paid during the lifetime of the bond, but in regular bond, interest rate is paid. The second difference is on the basis of duration. In zero coupon bond, the duration of the bond is equals to its maturity date, but in regular bond, the duration of the bond is less than its maturity date. The third difference is on the basis of interest rate risk. In zero coupon bond there is high interest rate risk, but in regular bond there is comparatively less interest rate risk. The fourth difference is on the basis of reinvestment risk. In zero coupon bond there is no reinvestment risk, but in regular bond there is reinvestment risk. Now we will talk about advantages and disadvantages of zero coupon bond. First we will talk about advantages. The first one is predictability of returns. सो ज़ीरो कूपन बॉन्ड में हम लोग रिटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग ने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड किया हुआ है तो. सेकेंड एडवांटेज है रिमूवल ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिस्क. नॉर्मल बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसीलिए उसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होता है. बट इन ज़ीरो कूपन बॉन्ड इंटरेस्ट
हम लोग को मिलता ही नहीं है, इसीलिए री इन्वेस्टमेंट रिस्क हम लोग का होता ही नहीं है ज़ीरो कूपन बॉन्ड में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज illiquidity। इन ज़ीरो कूपन बॉन्ड देयर इज़ नो सेकेंडरी मार्केट, इसमें सेकेंडरी मार्केट नहीं होती है। तो जब हम लोग को इमरजेंसी में कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग इसको सेल नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिक्विडेट ज़ीरो कूपन बॉन्ड इनटू कैश। सेकेंड डिसएडवांटेज है इसका नो रेगुलर इनकम, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हम लोग को उसको रेगुलर इनकम इसकी नहीं मिलती है, ना हम लोग को इसका इंटरेस्ट मिलता है। हम लोग को इसकी पेमेंट सीधे मैच्योरिटी के बाद मिलती है, इसलिए हम लोग की इसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है। सो हेयर कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, टैक्सेबिलिटी ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज चार्जेबल एट 10% फ्लैट ऑफ LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसकी हम लोग इंडेक्सेशन भी नहीं करेंगे। नॉर्मल कैपिटल एसेट्स की इंडेक्सेशन होती है अगर वो LTCG होता है, लेकिन हम लोग इसकी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, अगर हम लोग ने इसको 12 मंथ से कम होल्ड किया हुआ है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और इसका जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर हम लोग ने इसको 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे और इसका जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होएगा। सो एज आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट, and stay tuned for my second video which I will upload soon. Thank you so much.